Sudha Bhatia, wife of Professor S.D. Bhatia, Dr. Jagmohan, Director ONGC, Dr. B.P. Singh, a professor from PU, who is distinguished himself, Dr. Gupta from Microbiology Department, he is the chairman there, Dr. Dinesh Kapoor from BSIP Lucknow, Dr. Virendra Kapoor, my professor from whom I have learnt a lot. This place, a holy place of education, which was actually proposed by Dr. Arya with the purpose that this place should disseminate information, disseminate knowledge among the children who actually want to understand Earth, actually want to understand the things as they are. सोए पत्तों की तरह, जागती कलियों की तरह, खाक में गुम तो कभी खाक से पैदा चेहरे. That is how I could define this place. That is Fossil Museum, if I have to talk about. This is a place that was proposed by Dr. Arya long back, where people could understand, where people could, future generations could know that how this earth came, how the things developed, and how we can preserve them. That at this Fossil Museum, nestled in the picturesque town of Kasauli, Himachal Pradesh, it is a remarkable testament of the geological wonders of the Himalayas. Constructed from 20 billion-year-old rocks of the Kasauli sandstone, this museum houses a captivating collection of fossils that tell the story of ancient Tethys Sea, which once separated India and Asia billions of years ago. The museum has been divided into two main sections: evolution of life and man and environment. This was a brief description of the place, and now in this particular documentary that has been prepared on the museum, we would envelop, we would see all these things in detail. Himalayas touched there, where the ocean floor gradually rose, giving birth to the majestic Himalayas. This way for the ultimate closure of the mighty Tethys Ocean. This geological upheaval also resulted in the preservation of relics firsthand, providing a window into a time long gone. Within the walls of the museum, witness the science behind evolution, extinction. Good evening, everyone. My name is Twinkle. I am a student of class 6. My school name is Saint International School. Respected chief guests, elders, and all my dear friends. Today I stand before you to speak some light on this museum. This museum is known as Tethys Fossil Museum. आपको पता है Tethys क्या होता है? में होता था, उसे हम Tethys बोलते थे. आप यहाँ कैसे आए हो? गाड़ी आपकी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाला है उसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. आपको पता है कितने टाइप्स के रॉक होते हैं? यहाँ पे 3 टाइप्स के रॉक होते हैं. आपको पता है वर्ल्ड का सबसे पहला रॉक कौन सा था? वर्ल्ड का सबसे पहला रॉक था स्पेस रॉक, जिसे हम बोलते थे मीटियोराइट्स. कैसे बनते थे? जब वोल्केनो इरप्शन होता था और मैग्मा रॉक बन जाते थे, उसे हम इग्नियस रॉक बोलते थे. आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? आप बताओ. जब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से आते आते टूट जाते हैं तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. आपको पता है मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? जो रॉक्स अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं. आपको पता है जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? देश आ गया.
धरती का डॉक्टर। सही। सही। आपको एक डिश का एक एग्जांपल पता है? नहीं। मैं आपको एक हिंट दूं? वो हमारे किचन में लगता है। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, मार्बल। ग्रेनाइट। आपको सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल पता है? ह्यूमिस तो इग्नियस रॉक हो गया, वो तो हमारे बाथरूम में लगता है, बाथरूम में होता है, जिससे हम लोग और बोलो, घबरा मत। फॉसिल किसे कहते हैं? अच्छा, फॉसिल किससे बनता है? जब कोई एनिमल या फिर प्लांट मर जाता है और वो पानी के साथ फ्लो हो जाता है और वो रॉक फॉर्म कर लेता है, अगर उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म हुआ तो उसे हम फॉसिल बोलते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसे हम रॉक बोलते हैं। अच्छा, और कुछ बस एक्सीलेंट। वेरी गुड। And sharing your knowledge with us. And just for information, we have been running a series by the name Evolution of the Himalayas. And Dr. Arya has been conducting this series online where many geologists, anthropologists, other people from this world, that is from Indian universities, from across the world, Dr. Owen Green has been there, Mike Sutle has been there, Peter Moray, they have been a part of those discussions, and there are lots of information about the issues that are there in this world that are being faced by us on a day-to-day basis. Those are discussed, and of course, Dr. Manmohan has also been a part of that. So we see that such series which is being run would certainly be successful when you people also become a part of that. Certainly, whenever we are going to have our next lecture, we would love that all these people who are here today, they become a part of that. So now coming to the purpose of today, the award ceremony that is there. Dr. Arya proposed these awards long back, and for that we got lots of entries, about which I would wish that Dr. Arya come here and kindly share those awards and the information, what kind of awards were there and why you came up with this idea. Pleasure and happiness to say a few words on this momentous occasion. The exalted jury has unanimously recognized the zeal and hard work of the awarded paleontologists. Paleontology basically is a field science. Giving these awards for the importance and significance of the fossils collected, I think this is the first in the country. My heartiest congratulations to all those recognized today. May you all make even greater discoveries tomorrow. Thank you. लेकिन तब ये वीडियो थे यहाँ पे और मैं मेरे ख्याल स्टूडेंट था वहाँ पे, तो बड़ी जद्दोजहद रहती थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे को जो फॉसल्स मिलते थे या तो रोड कंस्ट्रक्शन में मिलते थे, तो कभी कोई बिल्डिंग बना देता है वहाँ पे, कोई वहाँ पे रोड बना देता है। हम बिल्डिंग के अगेंस्ट भी नहीं है, रोड के अगेंस्ट भी नहीं है, पर एक जो जियो हेरिटेज होती है वो एक जियोलॉजिस्ट की जान होती है, मतलब एक पेलेंटोलॉजिस्ट की। अब एक डिस्कवरी किया आपने तो वो प्रिजर्व हो जाए वहाँ पे और दुनिया उसको देख ले या उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो एक रिकॉग्निशन का कहीं ना कहीं मैं समझता था अभाव रहता था। वो यंग जियोलॉजिस्ट में जैसे मैं भी करता था, जब डिस्कवरी करते थे, मैं तो ग्रेजुएशन से शुरू कर दिया था, तो जब भी ढूंढते थे तो सानी सर के पास जाते थे तो हमारे को कॉफी हाउस ले जाते थे और हमारा इनाम होता था एक डोसा पार्टी, और वो बड़ा ही लगता था। और जैसे मैं वहाँ को मतलब ये भी थे कि वहाँ पे आओ और यहाँ पे अपने बैग रखो
और बस बाकी सारे कुछ कुछ करते थे। मैं एक मेरी ब्राउनी थी और मैं होता था, माँ ये खाना बंद कर देते थे और चले जाते थे घूमने, बस यही काम होता था। और ग्रेजुएशन करते करते इतनी सारी फॉसिल डिस्कवरी कर ली, लेकिन वो क्या होता था कि बस कर ली, अब फॉसिल ढूंढना ही गलत है, हम ये भी कर दिया वो भी कर दिया, इतने जगह छाप दिए, लेकिन बाद में फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना। तो ये बेसिक चीज़ें क्या है कि कैसे हम फॉसिल्स को वो भी छापें, वो भी जरूरी है, चलो आपने करना है हमें, लेकिन एक बच्चों को कैसे हम पहुँचाएँ वो मैसेज, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, शॉर्ट करो। सोच रहा था तो मेरा एक दोस्त है रॉकी, कहता उसने कुछ नहीं सोचा, कहता तो ये कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं 20,000 रुपये मेरी तरफ से दे देगा, वो यहीं पे बैठा हुआ है। नहीं यहाँ पे भी चला गया फिर बात, तो इससे नाम भी रॉकी है, नाम भी रॉकी, इसका हम प्यार से रॉकी कहते हैं। हमारे हॉस्टल में जैसा ये सब दोस्त हमारे ये कहते हैं ना बदमाश दोस्त, ये क्यों तो कर कहता ये मेरी तरफ से 20,000 रुपये उसने दे दिया। तो हमने क्या किया, एक इंसिडेंट वो करना तो सही हमने, पर ये बड़ा लगता है कि वो उसकी फील्ड भी नहीं है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसकी अब जैसे कि अपने हैंड वॉश यूज़ किए होंगे कोविड के दौरान, तो उसने काफ़ी सारे हैंड वॉश उसी के दिए, उसने माइक्रोवेव कंपनी से लगे, तो बड़ा अच्छा था। तो ऐसे प्रोत्साहन किया। फिर एक दिन मेरे को मिसेस भाटिया का फोन आया, सुधा भाटिया जी का, कि मैं भी 20,000 रुपये देना चाहती हूँ, तो कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम बताओ क्या करने। मैं क्या, मैं मैसेज से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इतनी इंतजाम की। फिर हमने कहा कि हम अवार्ड कैसे करें, तो हमने फिर एक बनाया, अपने ग्रुप्स में डाला, सबको किया, और ये एक अच्छी सी हमने इंडिपेंडेंट ज्यूरी बनाई। तो बड़े सीनियर है जिन्होंने इनॉग्रेशन की थी इस म्यूजियम की, फाउंडेशन को हमारा 3 साल पहले रखा गया था इसका, आज हम 3वीं उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो उसके मेंबर थे। फिर डॉक्टर जगमोहन जो ONGC के, फिर प्रोफेसर विनोद तिवारी, वो गढ़वा अपना वाणी इंस्टीट्यूट से, जीवियर प्रसाद वो बहुत बड़े पेलेंटोलॉजिस्ट हैं, साइंसर के स्टूडेंट थे लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और प्रोफेसर VP मिश्रा, डॉक्टर VP मिश्रा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, पेलेंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये सारा की इंडिपेंडेंट ज्यूरी, हमने क्या किया, सबसे पहले नॉमिनेशन दिए और सबको उनको दे दिए। तो उन्होंने क्या किया, कैटेगरीज हमने 4 कैटेगरीज में बांटे थे शुरू में, एक रिसर्च स्कॉलर्स, एक स्टूडेंट्स, और एक टीचर्स और जियो साइंटिस्ट, और एक एमेच्योर्स। मतलब जो ये जैसे अब ये ट्विंकल ने म्यूजियम में आई है, ऐसे मतलब ये कमेंडेबल जो एक्सप्लेनेशन दिए, मेरे ख्याल से इतनी सरल एक्सप्लेनेशन देना मेरे ख्याल से बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट को भी समझाना आज की डेट में मुश्किल हो जाता है। अब इसमें क्या था कि अब ये आए हैं, तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उस पर आता हूँ। लेकिन हमारे पास 13 एंट्रीज टोटल आई, और ये नहीं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से यहाँ से, हमारे पास ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं उनको यूनानिमसली मिला है। तो हमारे पास जो सबसे पहले अब हम इस बात का जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम वो प्रोफेसर SB भाटिया की याद में कर रहे हैं, उनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सारी ज्यूरी ने कहा कि उनकी तरफ से मिलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर जगमोहन सिंह आए और थोड़ा सा, क्योंकि ये उनके स्टूडेंट थे, तो ये कुछ उनके साथ अपने संस्मरण शेयर करें। Time span, Hominera was his original Let me specialization. say my style, otherwise it will take long time to speak. नहीं, डॉक्टर साहब बोले। चलो बोलो। डॉक्टर साहब को फर्स्ट टाइम You पता can है? speak something. Yes, 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 kindly. ठीक है। इन्होंने कहा प्रोफेसर भाटिया was my teacher. In fact, he was teacher to not having so much courage to join him because he was a very strict teacher. And yes, PhD research scholar means he has to work 15-20 hours a day. Otherwise, he is. So that was his. Professor Bhatia was senior. I have to justify. He completed his MSc from an excellent micropaleontologist. He published 250 publications, and he did not produce many PhDs. I counted some 12. Both are in US. The elder one is a professor in Colorado University. He is an economics,
and his daughter was a dental doctor. She did his BDS from Punjab University, Patiala. She did studies in US. She was the chairperson in a dental university in US. She's doing very well. So during COVID, probably around 4 years back, Bhatia, though she is a very senior, super senior citizen, she has shown a courage of coming there. The journey was quite tough. So Professor Bhatia deserved a lifetime achievement, and he had received such achievement in his lifetime also. But since Tethys Museum is related to paleontology, and he is one of the very senior teachers in this country of paleontology, we are blessed to give him a lifetime achievement on this occasion. It's important to receive it on his behalf, and she also equally deserves it. Ma'am, thank you. Produce such wonderful people who are today becoming the masters of the language of theology. So, and Dr. Waqas Mirza, if they are here, check certificate and award to them on their behalf. If their teacher, Dr. Sahab, if you are here, kindly, we would love that you come and receive on their behalf. थोड़ा सा बता दो कि रिसर्च के बारे में। Simran Bansal is MSc first year student, and currently she is working with me on स्वादु फॉर्मेशन, और हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों के स्वादु फॉर्मेशन के फॉसिल्स पर स्टडी कर रहे हैं। तो she got a large size Ophiomorpha which is not so far reported from the स्वादु formation in Bhanala section particularly. So that entry has been made for the nomination, and jury has selected it, and I am very happy for this. Thank you. It is of course a great achievement since we got so many entries from across India. This is cash reward for Simran. Ma'am, excuse me, ma'am. I am thankful to the jury for giving me this award. This is the first Tethys Fossil Museum award for the best fossil discovery award, and I have been selected for scientist and faculty public group. So I am thankful to the jury members, and my research is mainly concerned with the thalcinoid race fossil in Cambrian. Actually, it is the fourth report on global scale, and before that, thalcinoids are known from Ordovician, Silurian, and Eocene rocks. But this time, I have discovered it from the Cambrian rocks. So, jury has selected me for this award. Thank you very much. Awards are being conferred on Dr. V.P. Singh नहीं and अच्छा हाँ Vijay Shastri ji. कौन सी Award and certificate. नहीं कौन सी Mirza, on behalf of Dr. Waqas Mirza, kindly receive the award. Myself, Asghar Hassan, PhD scholar, Central University of South Bihar. My working area is Saurashtra, and basically we are working with the vertebrates fauna from there. मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा कि अब टेथिस फॉसिल म्यूजियम है, मुझे नहीं पता था कैसा है, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे जो है वो सब कुछ देखने में अच्छा मिला, सीक्वेंशियली सब कुछ मिला है, और यहाँ पर सब अगर जो इसे अवार्ड सेरेमनी में अगर सबसे मिले हैं तो वो भी अच्छा है। यही, थैंक यू सो मच। ये दिस इज फॉर द Waqas Mirza.
Dr. Kapoor, kindly join Manmohan Singh ji. And Dr. Sir, please, would like to have you here. Dr. Barinder Kapoor ji. Thank you, sir. And, we have awards and certificates for Dr. BP Singh. Scientists and professors. And there were 3 nominees for that. One is BP Singh, and the other one was Vivesh Kapoor, and the third one was Dr. Milan Kumar Sharma. So the jury has unanimously selected BP Singh for the award. Sir, excuse me, sir. Wait. In the amateur category, ये शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े थे म्यूजियम में साल भर पहले। तो जब भी कोई नास्तिक के बारे में जाना चाहता था, तो ये डिग्निटरीज जितने भी आते थे यहाँ पे, उनको वैदिक मंत्रों के द्वारा समझाते थे कि क्या महत्व है ये यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में। तो ये हमारे शास्त्री जी को हम एमेच्योर कैटेगरी में ज्यूरी ने, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, ये यहाँ पे कहीं पे जा रहे होंगे, अब ये उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा चलाओ वीडियो अपना। और बता दो, वैसे बता दो। मैं एक बार एक पूजा में गया हुआ था, तो मैं आर्य जी के साथ रहता हूँ, तो ये मेरे को समझाते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, पत्थर के अंदर कैसे ढूंढे जाते हैं वो फॉसिल्स। तो मेरे को समझ में आता था बहुत जगह पे। तो एक दिन मैं गया और मैंने देखा कि मैं काफी जगह भी जाता था, मैं एक चीज करता हूँ और मैं धर्मपुर में घूम रहा था कॉलेज में, तभी देखता हुआ। बेसिकली मैं डॉक्टर रितेश आर्य जी के साथ में जाता रहता हूँ और उनके म्यूजियम में रहता हूँ। और उन्होंने मेरे को मतलब पत्थर के बारे में, फॉसिल्स क्या होती हैं, सिप्पी क्या होती हैं वगैरह वगैरह, मोतीज क्या होती हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं पत्थर के बारे में, कैसे फॉसिल्स और जीवाश्म होते हैं। और आज मैं यहाँ रखा और मैंने मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने मतलब मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी उसके बाद में। बाकी मैं वहाँ मतलब ऐसे मैंने कोई साइंस विज्ञान नहीं पढ़ाया और वगैरह वगैरह मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं एक छात्री हूँ। उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा पहाड़ जाने के बाद मेरे को यहाँ पे देखो ये सिप्पी नजर आ रही है आपको, एक आपको दिखा देता हूँ कैमरा करके। ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिप्पी नजर आ रही है आपको यहाँ पे एक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रितेश जी को लाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, ये देखो बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे अगर कैमरा जूम करेंगे यहाँ पे देखो बिल्कुल ये सिप्पी नजर आ रही है आपको यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये यहाँ पे देखा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे एक वो मतलब संख है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँ तो ये पूरा संख निकल जाएगा। दिख रहे हैं आपको, ये एक संख है, एक सिप्पी है मतलब टाइप। और मतलब तो उनके बारे में मतलब काफी कुछ सीख रहा हूँ। मेरे को पता है ये वही दिख रहा है आपको, ये फॉसिल सी है। और ये देखो ये सारी सब सिप्पी हैं, मेरे को साफ नजर आ रही है। अब मैं उनको यहाँ पे किसी लेके आऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि ये देखो यार ये सब यहाँ पे सिप्पियाँ हैं और ये मतलब फॉसिल्स है और जीवाश्म है। और मैं कभी अपन को दिखाऊंगा ये सारे। और फिर होते हैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को पत्थरों में वही नजर आता है। जब से एक क्या मेरे को उन्होंने बुलाया नहीं दिखाया, एक क्या ये इनको ना वो मिल गया, क्या बोलते हैं मेरे को कुत्ते का स्कल्पचर मिल गया, फॉसिल फोटोग्राफ वीडियो। एक बार मेरे को मतलब कुत्ते का सर मिल गया, मैंने आज जो देखा मगर फॉसिल्स हैं, बोले ये जीवाश्म नहीं है, बोले पत्थर होना चाहिए, मगर देखना चाहिए। Certificate of appreciation will be given to Asghar Hussain. Asghar Hussain अगर यहाँ पे kindly is for Parthasarthi Bismal, Ishani Sharma, Sameer, Twinkle kindly, Twinkle का certificate. Twinkle, आजा।
यहाँ आओ मैम और सर के पास इनका हमने नाम दिया है जूनियर पेडियोलॉजिस्ट। एक्सक्यूज मैम सर। He's very hardworking and has been. वेट सर वेट। Behind the show who always work. And that tremendous work that has been done by Karamchand ji, Vivesh Kapoor ji, if he is there. Vivesh ji, there is a certificate for you, kindly send your appreciation. We would love you to be here. It's really great that you have covered such a distance for reaching here. And तो honored us. थैंक यू सर। जो मैंने एक्चुअली एप्लीकेशन आई वाज इन यूके में एप्लीकेशन जब आया था जो ईमेल आया था टू अप्लाई फॉर टेथिस आई हैड अप्लाइड फॉर अ फॉसिलाइज्ड कॉपरलाइट फॉसिलाइज्ड पू और फीकल मैटर जो मैं काम कर रहा हूँ अभी। आई हैव अ सीआरजी प्रोजेक्ट को रिसर्च ग्रांट प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर हम फॉसिलाइज्ड जो फीकल मैटर होता है पुराने जीवाश्मों का, डायनासोर का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में, बट बाकी उनके साथ भी दूसरे जानवर रहते थे। तो वी डोंट नो व्हाट इज द डाइट ऑफ दोज पर्टिकुलर एनिमल्स। और वो क्योंकि असेंबलीज में फॉर्मल असेंबली में तो सब कुछ मिलता था, शार्क्स और रेज और अलग अलग का। तो ये दिस वाज अ कॉपरलाइट ऑफ अ रेप्टिलियन, अभी तक हम बोल सकते हैं, या वो आप टर्टल का या क्रोकोडाइल का बहुत अच्छा पू मैटर था जिसमें 3D हमने किया। इसको स्लाइस करके नहीं देखा। जनरली कॉपरलाइट देखोगे तो जो खाता है आप थिन स्लाइस करते हो और अंदर देखते हो क्या मटेरियल है और माइक्रोस्कोप्स के नीचे और हेवी एंड हाई एंड माइक्रोस्कोप के नीचे, बट इसको हमने 3D रिकंस्ट्रक्ट किया। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। माइक्रो सीडी किया ताकि हम निकाल सके डिजिटली, वी कैन टेक आउट व्हाट इज देयर इनसाइड। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। स्पेशलाइज्ड पॉटी के ऊपर काम करते हैं। वो सी की क्या खाता था जानवर पुराने जमाने में, आप समझ रहे हैं? ऑडियंस सिर्फ करते हैं सारी ये टेक्निकल है यहाँ पे सपोर्ट। अच्छा, I was talking about the helping hands that work behind the curtain, and they have certainly been immensely helpful in building this whole project up. I would like to call Karamchand ji. यहाँ पर है तो Karamchand ji जो है। एक्सक्यूज मी सर। फिर से एक बार बुलाना आपको बात। He's a friend, so he's दोस्त है इसलिए सारा कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, but otherwise what he is doing is a fantastic job, excellent job, very rare to find. I was talking to his brother, I said there is a lot of motivation, he said no motivation, पागलपन है, so he has all. Calling on stage Dr. Naveen, Dr. Jagmohan, Dr. Vinesh, Dr. Virinder. Kindly come on the stage. I am thankful to the jury for giving me this award. This is the first Texas Fossil Museum award for the best fossil discovery award, and I have been selected for scientist and faculty public group. So I am thankful to the jury members, and my research is mainly concerned with the thalcinoid race fossil in Cambrian. Actually, it is the fourth report on global scale, and before that, thalcinoids are known from Ordovician, Silurian, and Eocene rocks. But this time, I have discovered it from the Cambrian rock. So, jury has selected me for this award. Thank you very much. यहाँ पर तो सर ये हम इकट्ठे थे हॉस्टल में। That is why he is taking the robotic. तो
तो इसकी कंपनी है माइक्रोवेव। अच्छा। मेरे ख्याल से इंडिया में जॉनसन जॉनसन को तो ये बनाती है, पर इसने अपना ब्रांड शुरू किया है। और जितने भी कोविड में आपने ये हैंड वॉश की सप्लाई देखी होगी, सैनिटाइजर वगैरह सारे माइक्रोवेव के थे, और मैक्सिमम जगह हाँ माइक्रोवेव है ना। तो इसने ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो है, लेकिन अपने आपको बिजनेसमैन समझता पर नहीं है ये है अभी भी वो साइंटिस्ट। और इसने साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड से क्या किया है, जो अपनी जितने भी इसने सीखा था माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन करके ही वो मतलब जब ये आया था तो बिल्कुल कुर्ते पजामे में होता था, और अब इसका जब लाइफस्टाइल देखोगे तो इसके घर में एक कैनाल की कोठी है इसकी और एक स्विमिंग पूल है उसमें। दैट इज व्हाट ही हैज डन बाय यूजिंग हिज रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी की और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी, एंड इज एम्प्लॉइंग मोर देन 100 पीपल। This is to honor our guest of the day, Mohan Sharma ji. You all will be honoring him for his being here on this August day. सर ये भी हम करते हैं, ये तो मेरी सीनियर एडवोकेट I would like you to say a few words to us all. नहीं सर अब तो डॉक्टर आर्या जी, उनके सारी टीम मेंबर्स के नाम मुझे मालूम भी नहीं है, उनके परिवार के सदस्य उनके साथ उनके म्यूजियम बना है। मैं अपने स्टाफ को पूछ रहा था कि कहाँ है लोकेशन, तो सुना तो है पर कहाँ है ये नहीं पता था। तो अभी कुछ दिनों पहले आर्या साहब से दफ्तर में मुलाकात हुई थी, शास्त्री जी भी आए थे शायद, तो फिर कुछ चर्चा हुई तो मैंने कहा मैं देखना चाहता था इनका म्यूजियम। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इतनी मेहनत से अकेले इतना बड़ा प्रयास करना, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करना, ये बहुत इसके लिए बहुत जुनून चाहिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए, बहुत मेहनत का काम है। और रखा करना, संभालना, सहेजना, यहाँ तक पहुँचाना और इसको एक म्यूजियम के रूप में लोगों को प्रस्तुत करना, पेश करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और मुझे लगता है कि जो जैसे तो बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हमारे बाकी बच्चे भी अगर स्कूल के आसपास के स्कूल से, चंडीगढ़ से, कहीं से इस म्यूजियम को विजिट करें तो इस विषय के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। इस धरती की उत्पत्ति हुई उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और वो भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ। एक होता है बात करना कि किसी बात कर दी ऐसे था पहले, जब सामने साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है किसी चीज़ का, तब उसको मानना ही पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी जहाँ पे नहीं होगी। इससे पहले मैंने सकेती का फॉसिल पार्क देखा था, तो पोस्टेड रहा हूँ, बट जितना अच्छा ये बनाया हुआ उतना शायद वहाँ नहीं है। सरकारी क्षेत्र होते हुए भी वहाँ प्रेजेंटेशन कि आप कैसे समझाते हो लोगों को। तो एक बार मैं सकेती फॉसिल पार्क गया था और कुछ काम हमारे चले हुए थे टूरिज्म से लेके, तो कुछ पंजाब से टूरिस्ट आए, उनको किसी ने बताया होगा, वो देखे ये आता है पत्थर जैसे, ये पूछे क्या है, चलो यहाँ से, तो कोई समझाने वाला नहीं है, तो उनके वैल्यू उनको समझ आती है कि ये क्या चीज़ है, छोटे सा पत्थर के टुकड़े की क्या वैल्यू है। तो जिस तरह से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, खासकर जो आपने ये बच्चे यहाँ पे आपके हैं जो ट्रेन हो गए हैं, तो इस तरह से इस पूरे जो हमारे हिमालय क्षेत्र उसकी जो पति के बारे में लोग जान। और दूसरी चीज़ जो अच्छी बात आपने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वेदों के साथ उसको साथ कोरिलेट करके भी पेश करने की कोशिश की है, वो भी बहुत है। उससे भी लोगों में और इंटरेस्ट पैदा होगा, उनको अपने जो हमारे धार्मिक हेरिटेज है हमारी, उसको भी एक साइंटिफिक बेसिस मिल जाता है कि वो हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने वो लिखा है वो कितने एडवांस्ड हो गया आज से 5000 साल पहले या जब भी उनकी रचना की होगी, तो वो भी हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और चर्चा की थी उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे, और बाकी मैं अलग से आपसे बात करूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग समझा सकूँ कि
अगर मैं ये कंसेप्ट है तो अगर हम वो दुनिया को समझा सके तो ये है। तो हमने क्या किया, सीरीज शुरू की थी। मुझे टॉप मोस्ट सबसे बड़ी जब मैंने इतना कर लिया, हमारे भी कॉन्सेप्ट हैं और ये रिसर्च स्कॉलर्स के भी और ये जो अंग्रेजों के भी कॉन्सेप्ट हैं सबके सुने हैं। सबसे बड़ी मस्त चीज़ लगती है कोलिजन का हुआ था और टेक्सिस का हुआ था। मतलब किसी का जन्म हुआ और किसी का मरण हुआ। तो ये जो एक कश्मकश थी बड़ी मस्त थी मेरे लिए। तो इसकी किताब भी मैंने लिखी है, विस्पर्स ऑफ टेक्सिस करके। और जब ये कर रहे थे तो फिर हमने एक शुरुआत की कोविड के टाइम में, तो सीरीज की थी। तो हमने टॉप मोस्ट जियोलॉजिस्ट दुनिया में काम करते थे, 12 साइंटिस्ट आइडेंटिफाई किए हमने, जो ये जिन्होंने औरों को भी देना था। तो उसके बाद 12 साइंटिस्ट जो आइडेंटिफाई कर दिए। उसके बाद मैंने लोग हर महीने सीरीज करते थे लेक्चर उनके बारे में। हम उनको 1 घंटे का टाइम देते थे कि आप जो मर्जी आपके बाहर रह के हिमालय में काम किया है, आपके पास 1 घंटे का टाइम है या 1.5 घंटे का टाइम है, जो भी आप लेना चाहते हो बोल लो अपनी रिसर्च के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते थे और ये निचोड़ निकालने की कोशिश करते थे कि आप अपनी रिसर्च के माध्यम से कब बताते हो कि हिमालय की उत्पत्ति हुई और कब समुद्र खत्म। तो बड़े आ जाते थे क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस यहाँ पे और भी अब बड़े अच्छे से निकल गए। हम ये पेपर हमारे और भी आ रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल प्रिसाइज ये एविडेंस बेस की बात करेंगे। तो इस तरह से बात हुई। तो ये हमारे वो व्यक्ति मिल गए जिन्होंने पूरा वो स्टेज संभाला और हमने किया। फिर डॉक्टर जगमोहन सिंह भी पूरे उसके साथ थे। तो काफ़ी अच्छी सीरीज रही वो हमारी। दुनिया के मेरे ख्याल टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं और पीटर मॉर्नर, मेरे ख्याल वो उनका आखिरी लेक्चर था और उनसे हमारी बात नहीं थी और उसके बाद भी लेक्चर के बाद भी बहुत ऐसे गुफ्तगू होती रहती थी। और ये जो सीरीज हमारी बन गई बड़ी हिट हुई। अब वो लेक्चर्स मतलब वैसे हैं कि वो प्रिसाइज टाइमिंग है कि नहीं है, तो उनकी रिसर्च सारांश पूरी ज़िंदगी में बंदे ने क्या होता है 2 लाइनें होती हैं उसकी कि किया ये टाइम है कि नहीं जरूरत होती है। मेरी तो बस ये जियोलॉजिस्ट ना होते हुए भी तो ये है कि आप देखो जियोलॉजिस्ट को इसको नॉन जियोलॉजिस्ट है इसको सारा समझा 20 मिलियन ये सब कहानी पूरी यही सुनाते थे जब भी हम लोग। अब ट्विंकल को हमने तैयार कर दिया। तो आप बच्चों को अगर जियोलॉजी समझाने में कामयाब होती तो आपकी रिसर्च कामयाब है, नहीं तो पेपर बहुत हैं। ये भी क्रिस्टल मतलब ये मस्त हमारा I am thankful to the jury for giving me this award. This is the first Texas Fossil Museum award for the best fossil discovery award, and I have been selected for scientist and faculty public group. So I am thankful to the jury members, and my research is mainly concerned with the thalcinoid fossil in Cambrian. Actually, it is the 4th report on global scale, and before that, thalcinoids are known from Ordovician, Silurian, and Eocene rocks. But this time, I have discovered it from the Cambrian rock. So, jury has selected me for this award. Thank you very much. Myself, Oscar Hassan, PhD scholar, Central University of South Bihar. My working area is Saurashtra, and basically we are working with the vertebrates fauna from there. मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा कि अब टेथिस फॉसिल म्यूजियम है। मुझे नहीं पता था कैसा है, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे जो है वो सब कुछ देखने में अच्छा मिला, सीक्वेंशियली सब कुछ मिला है। और यहाँ पर सब अगर जो इसे अवार्ड सेरेमनी में अगर सबसे मिले हैं तो वो भी अच्छा है। ये थैंक यू सो मच।